Very good morning, all. Myself, Professor Moreshwar of Commerce Faculty, here for introducing today's guest speaker, Mr. Bhushan Godbole. Respected Principal Dr. R. A. Junjarao sir, Dr. Ashok Kamble sir, and guest speaker Mr. Bhushan Godbole sir, faculty members, and my dear students. Today is the fourth day of 6 days workshop on stock exchange operations organized by Dr. Saukar Chair of Savitribai Phule Pune University in association with Modern College of Arts, Science and Commerce, Shivajinagar, Pune. I request Dr. R. A. Jhunjar, principal of our college, to felicitate Mr. Bhushan Godbole. We will begin with Vidyapeeth. I request all to stand. Please stand. Once again, good morning, everyone. It is pleasure to introduce Mr. Bhushan Godbole as today's guest speaker. His expertise in stock exchange operation is truly remarkable. Today, he will be enlightening us on the fundamental analysis of stock exchange operation. Let's give a warm welcome to Mr. Bhushan Godbole. He is a professional investor, trainer, consultant, educator, and former SEBI registered investment advisor. He is the founder of Arya Money Private Limited, a premier financial education and advisory firm dedicated to empowering individuals
with comprehensive knowledge of share market, mutual fund strategies for achieving financial independence. He is regularly appearing on leading news channels including G24 Stars, Sam TV, Lokmat News 18, and providing expert analysis on stock market trends and investment strategies. His stock recommendations, known for their high success rates, have been featured in esteemed publications like the Daily Sakar, Maharashtra Times, and Purani. He has trained over 10 lakhs individuals with practical investment and trading skills. The Arya Money app, with over 1 million downloads, is an interactive e-learning platform offering interactive contents, virtual trading features, and financial tools to enhance users' financial knowledge. The Arya Money YouTube channel provides educational videos on stock market fundamentals, trading strategies, and investment planning, reaching a vast audience of seeking financial literacy and guidance. His dedication and contribution in the field of financial education is recognized and awarded. He is 2016 CNBC All India Advisory Championship Top 10 ranker, recognized for exceptional advisory skills, placing among India's top financial advisors. Mr. Gorgole is committed to fostering the financial literacy and empowering individuals to make informed investment decisions. Through educational initiatives, media presence, and advisory services, he has been instrumental in helping investors confidence navigating the stock market to achieve their financial goals. With recognized expertise, extensive experience, and dedication to education, Mr. Bhushan Gorgole sir remains a trusted name in the financial world. Thank you, sir, for accepting our invitations and uh, take. I request dignitaries to take their seat. I request Bhushan Gorgole sir to start his session. Yes. गुड मॉर्निंग। आज का सेमिनार फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में है। तो यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट लिखा है, लेकिन उसके पहले कुछ हमको जानकारी आवाज पूरा कितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं, कितने लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। बहुत सारे लोग मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किन किन लोगों ने यहाँ पे स्कैम 1990 देखा? आवाज आ रही है? तो कितने लोगों ने स्कैम 1990 की सीरियल देखा है? वंस मोर। ओके। अभी लकी भास्कर किसने देखा है? लकी भास्कर। तो सीरियल तो बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। यस नो? ऐसा क्यों है? हम जानने वाले हैं मार्केट में क्या होता है। इसके पहले, ये सेमिनार शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा।
म्यूचुअल फंड्स की एड आप सब लोगों ने देखी होगी, यस नो? म्यूचुअल फंड के एड में एक डिस्क्लेमर आता है, वैसे कहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में म्यूचुअल फंड्स, एड में क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड्स, ये तो डिस्क्लेमर हो गया। एड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स सही है, म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन उसके बाद एक डिस्क्लेमर आता है, डिस्क्लेमर में कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इतने तेज तर्रार तरीके से बोल देते हैं, इसके पहले इससे तेज बोलते थे, सेबी में उनको बताया इतने तेज बोलना नहीं है, इतने तेज बोलना, जैसे आप कैसे कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, वैसे ही आप बताओ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स। रिस्क है भाई, रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो अभी पता चला। तो आप सब लोगों ने सीरियल तो देखी है, तो अभी रिस्क है तो इश्क है, तो चलो इश्क लड़ा है मार्केट के साथ। तो इस कैसे लड़ा जाता है, इस लड़ाने के लिए, इससे हमें जो मुनाफा कमाना है, कमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो ये सेशन आगे ले जाने से पहले, आगे ले जाने से पहले टाइम रिक्वेस्ट है कि आपके जो मोबाइल हैंडसेट से स्विच ऑफ तो मत कीजिए, लेकिन साइलेंट मोड पर रख सकते हैं, क्योंकि बाद में कुछ प्रैक्टिकल्स भी हम देखेंगे। आपके यहाँ पे इंटरनेट पे आप ऑन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार से रेशो एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बारे में ट्रेन होने के लिए आप मोबाइल साइलेंट मोड पर रखिए। और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यस नो? अच्छा, तो उन क्वेश्चन के आंसर्स तुरंत नहीं मिलने वाले, एंड में मिलेंगे। बीच बीच में क्वेश्चंस को आएंगे, उसके आंसर्स मैं करता रहूंगा, लेकिन एंड में हम काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, ताकि आप मार्केट में आप आगे चल के सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। तो आगे जाने से पहले फिर एक बार बताना चाहूंगा और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, इतनी बड़ी मात्रा में आप यहाँ पे आए। मैं जानता हूँ यहाँ पे जितने लोग आए हैं, और कॉलेज की अगर क्राउड देखे तो उसमें से यहाँ पे जितने प्रेजेंट है, इतना जरूर कह सकता हूँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। इसका एक रीजन है क्यों आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े क्राउड में आप यहाँ पे आए हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी को बताया नहीं होगा कि कहाँ जा रहे हैं। अगर बता दिया कहाँ जा रहे हैं, शेयर मार्केट के सेमिनार को जा रहे हैं, ये तो गया। तो क्या यही मार्केट की सच्चाई है? और क्या मार्केट में जाने के बाद हर किसी को हर्षद मेहता ही बनना है या लकी भास्कर बनना है? तो किस प्रकार से एनालिसिस करके हम मार्केट में अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल एनालिसिस। आपको कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? तो मार्केट में एक आदमी को बिग बुल कहा जाता है, बिग बुल। हर्षद मेहता के बाद किसको कहा जाता है? राकेश झुंझुनवाला। तो हर्षद मेहता के टाइम पे मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, बहुत ऊपर गया था, इतना ऊपर गया था ऐसा लग रहा था ऊपर ही जाना है, अब बस ऊपर ही जाना है। लेकिन उस टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस के तहत मार्केट में वैल्यूएशन जो शेयर्स के थे इतने महंगे हो चुके थे। राकेश झुंझुनवाला ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा, जो मार्केट में वैल्यूएशन जिससे हम नापते हैं शेयर्स का, पी बोलते हैं उसको, प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, उस हिसाब से, उस रेशो के हिसाब से बहुत महंगे हो गए थे शेयर्स। लेकिन उस टाइम पे जब राकेश झुंझुनवाला लोगों से बातचीत करते थे, उनके एक दोस्त थे, उन्होंने कहा देख राकेश, मार्केट में अभी पी मत देखना है, अभी बस इन्वेस्ट करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी बस इन्वेस्ट करना है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट मजामा है। तो मार्केट तो मजामा है वो बोल रहा था, लेकिन राकेश झुंझुनवाला कह रहे थे कि मार्केट वैल्यूएशन बहुत महंगा है फंडामेंटल एनालिसिस के तहत। तो उसको वो दोस्त बोला, यहाँ पे फंडा का सब मेंटल है, यहाँ पे फंडा का सब मेंटल है, क्या यही सच्चाई है? उसके बाद मार्केट बहुत जोरों से गिरा, भले ही उन्होंने तेज दौड़ लगाई थी, लेकिन वैल्यूएशंस के दम पर अगर आप एनालिसिस करें तो मार्केट बहुत महंगा हो गया। कैसे पहचाने, किस प्रकार से एनालिसिस करना जरूरी होता है? क्या ऐसा ही मार्केट किसी भी समय हमेशा ऊपर जाता रहता है? वो कौन से कारण से ऊपर जाता है, ये एनालिसिस हमें इन्वेस्ट करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इवैल्यूएट्स अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री पोजीशन एंड मार्केट एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो ये जानना जरूरी होता है कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं वो क्या कर रही है। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं?
ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर पीटर लिंच है। जब वो बताते हैं ज्यादातर लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसने बताया, उसने बताया, टीवी पे देखा, पेपर में पढ़ा। लेकिन उसके पहले एनालिसिस करना जरूरी है। वो जरूरी इसलिए कि ताकि हमें पता चले ये कंपनी करती क्या है। वही पीटर लिंच कहते हैं हर एक कंपनी के पीछे, हर एक शेयर के पीछे कंपनी होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर से देखे तो हर एक शेयर के पीछे एक कंपनी होती है। तो चलो हाथ ऐसे आगे करो, हाथ ऐसे आगे करो, आगे करो, देखो बाजू वाले देखेगी, हाथ आगे करो और बोलो हर एक शेयर के पीछे, हर एक शेयर के पीछे एक कंपनी होती है। यू नो कोर्स में तुझा पढ़ी है। हर एक शेयर के पीछे कंपनी होती है। तो कंपनी का एनालिसिस किए बगैर आप शेयर में जा रहे हैं तो फिर आप सट्टा खेल रहे हैं। वो जानना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है। भले ही आप मार्केट में किसी कंपनी का भले एक शेयर खरीद रहे हो, फिर भी आपको ऐसा सोचना है, पूरा बिजनेस खरीदना। बोलो मेरे साथ, बोलो भले ही मैं एक शेयर खरीद रहा हूं, ऐसा करो, बोलो भले मैं एक शेयर खरीद रहा हूं, जो कर ले रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं बनता। भले ही मैं एक शेयर खरीद रहा हूं, बोलो ऐसा सोचेंगे पूरा बिजनेस में खरीद रहा हूं। जानते हैं ये किसने कहा, ये किसकी स्ट्रेटजी, कोई बता पाएगा? वॉरेन बफेट। किनकी स्ट्रेटजी है? कौन है वॉरेन बफेट? हमने तो बफेट लंच सुना है। वॉरेन बफेट जानते हैं? यस सर, इन्वेस्टर है। और कोई? वॉरेन बफेट कौन है? करेक्ट, वर्ल्ड 8th richest मैन। और कोई यहाँ पे? ऐसा नहीं ना, यहाँ पे होनहार बच्चे बिठाए हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई वॉरेन बफेट कौन है? यस, अमेरिकन बिजनेसमैन। ओके, तो वॉरेन बफेट के जो गुरु है, इनका नाम है सर बेंजामिन ग्राहम। सर बेंजामिन ग्राहम। इनसे उन्होंने सीखा मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बनते हैं। तो वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। आप जब किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो और ऐसा सोचते हो कि ये बिजनेस में खरीद रहा हूं, तभी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। ये उनके गुरु ने जो सीख दी वही उनकी जीवनी बन गई। बात समझ में आ रही? अब कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है? वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी को स्टडी करें। और इंडिया में अगर आप जानना चाहते हो कि किस प्रकार के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में क्या दुनिया में किसी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करके सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें? इतनी बार वॉरेन बफेट बता चुके हैं, कंपनी कैसी हो, मैं बताऊंगा, फिर आपसे वो रखवाऊंगा। क्योंकि आज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो सिखा के यहाँ पे जाने नहीं वाला। ये सिखा के मैं आपके, जो मैं सिखाने वाला हूं, ये सीख मैं आपके डीएनए में डाल के जाऊंगा। किस प्रकार की कंपनी में निवेश करना है। वॉरेन बफेट बोलते हैं कंपनी ऐसी हो किले की जैसी हो। कंपनी ऐसी हो किले की जैसी हो। किले के बाहर एक बड़ा खंदक हो, खंदक में पानी हो, पानी में जैसे मानो मगरमच्छ छुड़े हो, जैसे कॉम्पिटिटर उस बिजनेस में आसानी से घुस न पाए। बात समझ में आ रही? कंपनी कैसी हो? बोलो मेरे साथ, कंपनी कैसी हो? एक किले जैसी हो। ध्यान रखो, बाजू में लगना पाए। कंपनी ऐसी हो, एक किले जैसी हो। बाहर बड़ा सा खंदक हो। खंदक में मानो मगरमच्छ छोड़े। कॉम्पिटिटर्स आसानी से घुस न पाए। इसको बोलते हैं मोट। मतलब ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनी बनाई है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझ में आएगा। यस नो? अभी मान लेते हैं कंपनी है कैडबरी। चॉकलेट को बहुत से लोग कैडबरी कहते हैं। अब कैडबरी जो चॉकलेट जिसका उसका टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट वाला चॉकलेट मैं बनाऊं। मान लो मैंने वैसी चॉकलेट बनाई, जितनी उनके पास मशीनरी है बिल्कुल उतनी ही मशीनरी मैंने यहाँ पे लगाई पुणे में, और बिल्कुल उसी टेस्ट वाली चॉकलेट दुकान में रखी। अब कोई यहाँ पे आता है और चॉकलेट मांगता है, उसको अपनी दुकान पर ऑफर करता है
ये कैडबरी है और ये गुडगुडे चॉकलेट। क्या आसानी से मेरे चॉकलेट्स लोग खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? कोई बता पाएगा? ब्रांड वैल्यू क्या है? ब्रांड वैल्यू। तो ब्रांड में कंपनी ने दबा के इन्वेस्ट किया है, दबा के इन्वेस्ट किया है। कॉमर्स बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? सब कॉमर्स, बहुत अच्छा। तो जानो, जब कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस में चला जाता है। यस नो? से कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में उड़ा रही है? कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में उड़ा रही है? उड़ा नहीं रही थी, वो एसेट बना रही थी। एसेट तो इसमें आता नहीं, एक्सपेंस में। यस नो? एसेट तो एक्सपेंस में आता नहीं है, लेकिन एड पे इतने पैसे खर्च किए, वो जो एसेट क्रिएट कर रही थी वो वर्चुअल एसेट था, ब्रांड। वो वर्चुअल एसेट था ब्रांड में इतने इन्वेस्ट किए ताकि बाद में कोई ऐसा बोलबोले चॉकलेट लेके आए खड़ा नहीं रहता, कॉम्पिटिटर आसानी से घुस सकता है। तो इस प्रकार से मोड खड़े करने बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अभी इंडिया में अगर को चीजों को चिपकाना है, क्या क्या किससे चिपकाते हैं? फेविकॉल से चिपकाते हैं। कौन सी कंपनी बनाती है फेविकॉल? कौन सी कंपनी? पीडीलाइट बनाती। तो कोई ऐरा गैरा नथु खैरा अगर आ जाए चिपकाने के लिए लेके उसका प्रोडक्ट, तो क्या टिक पाएगा? लगता है आसानी से टिक पाएगा। क्यों? ब्रांड। एक एक एडवर्टाइजमेंट पे बहुत दिमाग लगा है, एक एक एडवर्टाइजमेंट पे उनके एडवर्टाइजमेंट भी फेमस हो गए थे, है ना? उनके कॉम्पिटिटर था, अच्छे प्रोडक्ट बना रहा था। कोविड के टाइम पे मौका देख के चौका मारा। इस कंपनी ने उस कॉम्पिटिटर को खरीद लिया। पीडीलाइट ने एरनडाइट करके और एक कॉम्पिटिटर एरनडाइट को खरीद लिया। तू भी मेरा है, सब मेरा है। तो इस प्रकार से कंपनी ने मोड बना दिया, एडवर्टाइजमेंट से ब्रांड बना दिया और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज प्रोडक्ट बनाता हूं तो लास्ट में डिलीवरी भारत में इतने जगहों तक तुरंत पहुंच सकता हूं, क्योंकि उतने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए मैंने पैसे खर्च किए और उतना नेटवर्क बनाया, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा बना। तो मोड, जिस कंपनी के पास वो मोड है, Buffett uses metaphor of castle and moat to emphasize the importance of a company's competitive edge and advantage. बात समझ में आ गई? तो कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं कैसे हो? कंपनी ऐसी हो, जोरों से कंपनी ऐसी हो मानो एक किला हो, किले के बाहर बड़ा सा खंदक हो, खंदक में पानी हो और पानी में ताकि कॉम्पिटिटर्स आसानी से। तो अगर आप आगे चल के बड़े इन्वेस्टर बनने वाले हो या एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, तो कंपनी इस प्रकार से बनाना जरूरी है जिसके पास ऐसे बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी किस प्रकार से कंपनी का चुनाव करना है, इस प्रकार की कंपनी समझ में, कि कहां है ऐसा किला, कहां ऐसा किला। तो वो समझ में कैसे सब किले नजर आ रहे हैं, सब किले नजर, तो कैसा चुने। अब लोग उसके लिए किताबें पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट को समझने के लिए इतनी बड़ी एम्पायर इस आदमी ने खड़े कैसे की, सीक्रेट जानने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, सीक्रेट जानने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन मजे की बात बताऊं, यस नो? यस। अच्छा, मजे की बात क्या है, खुद वॉरेन बफेट ने एडवर्टाइजमेंट देके बता दिया किस प्रकार की कंपनी चुनते हैं। वॉरेन बफेट ने खुद एडवर्टाइजमेंट करके बता दिया है किस प्रकार की कंपनी वो चुनते हैं, बस हमें वो रीड करना है। 1986 में जो उनका एनुअल लेटर है उसके पहले भी ये बता चुके हैं। इसमें उन्होंने बताया, वॉरेन बफेट राइट इन 1986 जो वो लेटर लिखते हैं, हर साल अपने इन्वेस्टर्स को लेटर लिखते हैं किस प्रकार से वो कामकाज कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें क्राइटेरिया बताया किस प्रकार की कंपनी वो खरीदना चाहते हैं, किस प्रकार की कंपनी वो खरीदना चाहते हैं। पहला पॉइंट होता है लास्ट परचेजेस। उनके लिए, उनके पास बहुत सारा पैसा है, इसके लिए वो पैसों से मुझे ऐसी कंपनी बताओ कि जो बड़ी हो मैं खरीद सकता हूं। ऐसा है, अभी अंबानी मैं आपको बताता हूं, अंबानी के पास बहुत कम पैसे है। ये सो नो, इतने धीमे अंबानी के पास बहुत पैसे है। यस नो? यस। अंबानी के पास तो बहुत पैसे, लेकिन अगर मान लेते हैं कॉलेज के
कॉर्नर में एक बड़ा पाव वाला है, बहुत अच्छा तरीके से बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, क्यों ना अंबानी वो धंधा खरीद ले, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। यस नो? तो बड़ा पाव का बिजनेस एनालिसिस करे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके पास, बिल्कुल कॉलेज के बगल में सारे लोग उसका क्यों बड़ा पाव की खाते हैं ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वो बिजनेस करके खरीद के अंबानी इतना पैसा कमा नहीं पाए। तो बड़ा परचेस उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा परचेस करना चाहता हूं। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंट अर्निंग पावर। जो बिजनेस आप मुझे बेचना चाहते हो, जो मुझे बिजनेस आप बेचना चाहते हो, उसमें कंसिस्टेंटली अर्निंग बढ़ती हुई होनी चाहिए, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए होने चाहिए। अभी बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आते हैं, वो लीडिंग लगते हैं, क्या लगते हैं? लीडिंग, लेकिन ब्लीडिंग होते हैं। पैसा दबा के खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन प्रॉफिट का पता नहीं, प्रॉफिट का ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बॉटम लाइन समझते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स? टॉप लाइन का मतलब क्या है? कौन बताएगा टॉप लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, टॉप लाइन का मतलब है सेल्स, टॉप लाइन का मतलब है सेल्स, और बॉटम लाइन का मतलब है प्रॉफिट। बॉटम लाइन का मतलब है, तो मेरे साथ बोलो टॉप लाइन, ऐसा ऊपर देखो, टॉप लाइन सेल्स, बॉटम लाइन प्रॉफिट। खाली सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलता। प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट कैसा चाहिए? बढ़ता हुआ। प्रॉफिट कैसा चाहिए? बढ़ता हुआ। इसका मतलब है कंपनी अर्निंग में कंसिस्टेंटली अपनी पावर दिखाती है। तो मेरे साथ बोलो, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? हाँ, ऐसा करो, बढ़ता हुआ। बात समझ में आ गई? तो पहले हमने क्या सीखा था? कंपनी कैसी चाहिए? मान लो किले की तरह हो, किले की बाहर बड़ा सा खंडक हो, खंडक में पानी हो, पानी में मगरमच्छ छोड़े हो ताकि कॉम्पिटिटर्स आसानी से। अभी कंपनी के पास जो अर्निंग स्ट्रेंथ है वो भी होनी चाहिए। अर्निंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं बार बार बताऊं, जो नहीं करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। अर्निंग कैसी होनी चाहिए? बढ़ती हुई। अभी तीसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी विद द मिनिमल और नो डेट। जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रमोटर, जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसके ऊपर वो जबरदस्त अर्निंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो 100 रुपए प्रमोटर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, 100 रुपए प्रमोटर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके ऊपर कमा कितना रहा है? 2 रुपए। किस लिए बिजनेस कर रहा है भाई? बैंक में रखता तो 6 रुपए मिलते। बैंक में अभी इंटरेस्ट रेट कितना है? 7% है। तो 100 रुपए रखते तो बैंक में कितने मिलेंगे? 7। ये भाई साहब बिजनेस कर रहा है 100 रुपए का, बिजनेस में 100 रुपए डाल रहे हैं, 2 रुपए कमा रहे हैं। बिजनेस करना अच्छा है या बैंक में रखना अच्छा है? तो हमने बैंक से क्यों कंपेयर किया? कोई बता पाए? सेफर ऑप्शन क्या है? क्योंकि बिजनेस में रिस्क है, बैंक में रखूंगा तो रिस्क कम है। यस नो? तो बैंक में रखता हूं तो 7 रुपए मिल रहे हैं, काहे के लिए बिजनेस कर रहा हूं 2 रुपए मिल रहे हैं, काहे के लिए बिजनेस कर रहा हूं 2 रुपए मिल रहा है। तो बैंक इंटरेस्ट रेट से हमने कंपेयर किया। वॉरेन बफेट कहते हैं इंटरेस्ट रेट एक्ट्स एज अ ग्रेविटी ऑफ द स्टॉक प्राइस। तो इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, सिग्मा करते हो, तो कंपनी मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट करके 7 रुपए कमा रही है, बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करके 7 रुपए कमा रही है, क्या ये कंपनी अच्छी है? क्या ये कंपनी अच्छी है? यस नो? क्यों? बैंक तो उतना दे ही रही है, ये 7 रुपए कमा रहे हैं, पहले से तो बेहतर है, लेकिन उतना अच्छा है। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे, है ना? तो वॉरेन बफेट कहते हैं मार्केट में 3 प्रकार की कंपनी होती है, गुड, ग्रेट एंड ग्रूसम। गुड, ग्रेट एंड ग्रूसम। तो इंडिया में और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर विजय केडिया, वो कहते हैं मार्केट में 4 कैप्स कंपनी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड भंगार। क्या? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड। तो जब हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं, ये समझ में आना चाहिए, ये जो प्रमोटर है, जो बिजनेस करने वाला इंसान है,
मार्केट में आने से पहले अगर बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं तो बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर कमा कितना रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है। तो बोलो मेरे साथ, पहले देखना है ये जो प्रमोटर है, ऐसा करना, ये जो प्रमोटर है कितना पैसा डाल रहा है, कितना कमा रहा है। बस समझे? तो तीन चीजें हमने सीखी थी। बिजनेस ऐसा हो, मानो किले की तरह हो, किले के बाहर बड़ा सा खंडक हो, खंडक में पानी हो, पानी में मगर न छोड़े हो, ताकि कॉम्पिटिटर्स आसानी से बिजनेस में। दूसरी बात हमने सीखी, अर्निंग कैसा हो। तीसरी बात सीखी कि प्रमोटर जो है वो बिजनेस में कितना पैसा डाल रहा है, उसके ऊपर कमा कितना रहा है। अगर 7% बिजनेस से कमा रहा है तो बैंक जैसा काम कर रहा है। ये तो कितना परसेंट कमाना चाहिए इंडियन मार्केट के हिसाब से कम 14% तो कमाना चाहिए। बिजनेस में जितना पैसा डाल रहा है उसके ऊपर 14% कमा रहा है तो बढ़िया कमा रहा है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क भी है। बिजनेस में रिस्क है। और जो प्रमोटर होता है, जो पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करता है, खाली उसके होते नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब कंपनी आती है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक का पैसा लेके मार्केट में डाला है, पब्लिक का पैसा लेके मार्केट में डाला है, तो पब्लिक ने उसको पैसा बैंक जैसे रिटर्न देने के लिए नहीं दिया है। कैसे हम बोलते हैं शेयर का प्राइस का और कंपनी का क्या रिलेशन है। जब हम आईपीओ के माध्यम से कंपनी को पैसे देते हैं तो कंपनी कहती है मेरे पास इतने पैसे, अगर आप पैसे दोगे, आप मुझे पैसे दोगे तो मैं इतना बड़ा बिजनेस कर दूंगा, बदले में आपको मेरे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। अगर मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, आपको मुनाफा हो सकता है। इन डिटेल थोड़ा बाद में समझते हैं इसको। तो पब्लिक से पैसा लिया है, पब्लिक ने पैसा बैंक में बिना रखते हुए इस प्रमोटर को इसलिए दिया है ताकि ये प्रमोटर बैंक से बेटर रिटर्न कमा पाए। यस नो? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी विद मिनिमम और नो डेट। आपको बताना चाहूंगा, जान के हैरान हो जाओगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, उसमें से करीबन 150 कैसे वैसे करके 15% से ज्यादा रिटर्न कमा रहे। बात समझ में आ रही है? तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसने कहा, उसने कहा, किसी अरे गरे गंतु गरे ने कहा, इसलिए मार्केट में इन्वेस्ट। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब चौथी बात देखते हैं, मैनेजमेंट इन प्लेस। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया मैनेजमेंट होनी चाहिए, वो अच्छा है, प्राइस बढ़, मुनाफा बढ़ रहा है, 15% से कंपनी ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है, और मैनेजमेंट बिल्कुल फ्रॉड है। मैनेजमेंट बिल्कुल केसेस हो रहे हैं, पता नहीं क्या कनेक्शन है। तो मैनेजमेंट का किस प्रकार का नजरिया है, ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है। इसको बोलते हैं गोइंग बियॉन्ड द नंबर्स। कैसे पता चलता है? इसके लिए कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं, कंपनी के पहले उन्होंने जो बताए थे, जो वादे किए थे, किस प्रकार से वो आगे गए हैं, ये सब आप जान के पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बारे में आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मैनेजमेंट रिप्लेस होना चाहिए। और पांचवा अहम मुद्दा जो इससे कनेक्टेड है, सिंपल बिजनेस। देखिए वॉरेन बफेट ने खुद बताया, अर्निंग बढ़ती हुई चाहिए, अर्निंग बढ़ती हुई होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, धंधे में जितना पैसा डाला है उसके ऊपर बेहतरीन रिटर्न होना चाहिए। कर्जा कम होना चाहिए, नो डेट या मिनिमम डेट, कर्जा कम होना चाहिए। और बिजनेस सिंपल होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? वैसे पीटर लिंच भी कहते हैं, पेंसिल या चॉक से भी आप एक्सप्लेन करने चाहो तो 2 मिनट में अगर आप बिजनेस एक्सप्लेन कर पाते हो तो अच्छा है। एक कहानी बताना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? यस। एक कंपनी है, अमेरिका में एक कंपनी है, इंडिया में भी उसको बहुत सारे लोग जानते हैं। अमेरिका में एक कंपनी थी, कह सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे थे? शेयर्स क्या कर रहा था? लोगों की उसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो रही थी? लेकिन किंतु परंतु इस कंपनी के बिजनेस के मॉडल के बारे में समझ में नहीं आ रहा था, कंपनी क्या कर रही है, एग्जैक्टली प्रॉफिट कैसे कमा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। शेयर प्राइस बढ़ रही थी क्योंकि अर्निंग बढ़ रही थी, कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा था, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ रही थी। बात समझ में? मुनाफा बढ़ रहा है, शेयर प्राइस बढ़ रही है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है कोई सोच नहीं रहा था, बस कमा रही है। एक एनालिस्ट अभी पेपर में लिखना है तो उनके पास चला गया, प्रमोटर के पास चला गया, भाई साहब बताओ आप करते क्या?
कंपनी का आपने तो बता दिया है, इस सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली काम कैसे कर रहे हो ताकि इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो उसने जो कुछ बताया, हमारी एक कंपनी है, उसके दो कंपनी है, उस दोनों की दो कंपनी है, एक कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता तो उस कंपनी में चला जाता है, उस कंपनी का लॉस होता है तो इस कंपनी में चला जाता है। एक घंटा बातचीत हुई, एक अब ये अलग बात है, वो जो गिरावट हुई, उस गिरावट में भी एक इंसान ने पैसे कमाए, क्योंकि वो फ्रॉड जान चुका था क्या है, अकाउंट्स का किस प्रकार से मैनिपुलेशन किया जाता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे? तो हमने आपको सिखाया टॉप लाइन मतलब क्या है? सेल्स। तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन उसमें एक मिस्टेक थी। ये कंपनी जहां पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करती थी, अभी मैं गया, अभी ये मुकल सर है, उनके पास मैं इंद्रा हूं, उसके पास गया, आपसे मैं डील करने वाला हूं, आपके शहर में मैं बिजली पहुंचाऊंगा, आपके शहर में मैं बिजली पहुंचाऊंगा, 400 करोड़ की डील, डन। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना? 5 तो 5 साल में 400 करोड़ मिलने हैं, यस नो? यस। तो अभी तुरंत मिलेगा क्या मुझे 500 करोड़ या 400 करोड़? मिले? नहीं मिले। अभी तो डील साइन हुई है, धीमे धीमे करके जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, वैसे उनके गांव में, शहर में, जहां पे भी है, वहां पे बिजली चली जाएगी, और उस तरीके से मुझे प्रॉफिट्स अकाउंट्स में लाने हैं, यस नो? यस। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने एक स्पेशल परमिशन उनको मिली थी, 400 करोड़ की डील हुई, अभी तक 5 साल में दी नहीं है, फिर भी मैंने अकाउंट्स में डाल दिया 400 करोड़ का प्रॉफिट। और इसी प्रकार से चले जा रहे, जहां पे प्रोजेक्ट खत्म नहीं होते थे, डिले होता था, वो किसी दूसरे कंपनी के नाम पे डाल देते, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क बना गया था कंपनी का। एक स्पेशल केस स्टडी, अगर आप इसमें जानना चाहोगे तो गूगल करके बहुत स्टडी करो, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो ना तो सक्सेस स्टोरी से, बस सक्सेस स्टोरी नहीं, जो फ्रॉड्स होते हैं उससे भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है, यस नो? यस। तो सिंपल बिजनेस होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए। और आगे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्राइस। वॉरेन बफेट को बेचने जा रहा है। वॉरेन बफेट को क्यों अपना बिजनेस बेचेगा? क्योंकि एक आदमी है जिसने अपना बड़ा बिजनेस कर दिया है, अभी वो प्रॉब्लम में है, वो सोच रहा है आगे चल के मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मालूम नहीं ये बिजनेस को बढ़ा पाएंगे या नहीं। तो अच्छा बिजनेस बना है, मुझे कंसर्न है, मेरे बिजनेस का ख्याल कौन रखेगा? तो वॉरेन बफेट बोलते हैं मैं रखूंगा, अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो मैंने म्यूजियम खोल के रखा है, अच्छे बिजनेस का मैंने म्यूजियम खोल के रखा है, आप आओ मुझे बेचो, मैं देखता हूं। बस समझ में? तो ऑफरिंग प्राइस होना बहुत जरूरी है। जब उनके पास चले जाए, लोग बोलते ना वहां पे जाने के बाद कितने में आप खरीदोगे, मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओ, ऐसा नहीं चलेगा। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, आप मुझे प्राइस बताना बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें आपके पास है तो मैं आपका बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हुए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कंपनी जो भी ऑफर प्राइस बोला है, आप ऑफरिंग प्राइस बोलिए, इसको हम बोल सकते हैं मार्केट में उसका दाम क्या चल रहा है। अभी शेयर मार्केट में उस कंपनी का दाम क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस उसका क्या है, हमें मालूम होना चाहिए, जो हमें इजीली मालूम होता है, यस नो? तो कंपनी में पहला देखना जरूरी होता है क्या उस कंपनी ने पिछले 5 साल में, 10 साल में अर्निंग में ग्रोथ की है कि नहीं, अर्निंग में ग्रोथ की है कि नहीं। दूसरी चीज देखना जरूरी है, क्या पैसे में जितना पैसा बिजनेस में डाल रहे हैं उसके ऊपर अच्छा रिटर्न कमा रहे कि नहीं कमा रहे। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, मैनेजमेंट इथिक्स क्या है। उसके बाद बिजनेस सिंपल है कि नहीं। अब प्राइस को कंपेयर करके हम जानना चाहेंगे कि वो प्राइस हमारे लिए सही है कि नहीं, जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं आपको एक चीज बेचने जाऊंगा तो कैसे उसको एनालाइज करोगे, ये चीज आपके लिए सस्ती या महंगी है। मान लो मैं आपको पेन बेचने जा रहा हूं, मान लो मैं आपको पेन बेचने जा रहा हूं, 30 रुपए में ऑफर कर रहा हूं, 30 रुपीज, ठीक बात है। क्या आप खरीदना चाहोगे? नहीं, क्यों? महंगा लग रहा है, लेकिन जो मैं पेन दे रहा हूं सोने का है, लेना चाहोगे? तो उसकी अभी लेने के लिए तैयार है, लेकिन सोना कितना है? 0.00001। सोने का पहले तैयार हो, लेकिन इसके लिए ये जानना जरूरी है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी इसके लिए अपलोड किया है, बाद में लास्ट में बताऊंगा कि मान लो आपके पास
मैं आता हूँ बोलता हूँ मैं आपको पैसे छापने की मशीन देने के लिए तैयार हूँ, पैसे छापने की मशीन देने के लिए तैयार हूँ। पैसे छापने की मशीन अगर मैं देने के लिए तैयार हूँ, बेचने के लिए तैयार हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे के लिए तैयार हो जाएंगे, पैसे ही छाप के मिलने वाले, कितने भी खरीदो, जितने खरीदे हैं छाप के निकाल लेंगे, यस नो। तो तुरंत लोग पैसे छापने का मशीन खरीदने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई आपको पैसा छापने का मशीन भी देने के लिए आए तो सवाल पूछो, अच्छा पैसा छापने का मशीन देने आए, कितने लोग छपेंगे? मैं आपको बोलता हूँ हाँ छपेंगे ना, बिल्कुल छपेंगे, 500 के 2 नोट आएंगे, 500 के 2 नोट आएंगे। मशीन बेचने जा रहा हूँ 50,000, अभी 50,000 में आपने मशीन ले लिया, महीने में कितने मिल रहे हैं? 1000। तो आपकी कॉस्ट निकलने में कितना समय लगेगा? हर महीने 1000 रुपए, हर महीने 1000 रुपए, 50,000 तो 50 महीने लगेंगे, यस। और मैं बोला ठीक है, 50 महीने के बाद पूरा पैसा मेरा। तो अगला सवाल यह है, अच्छा महीने में 1000 मिलेंगे, अगला सवाल ये पूछना है कितने समय तक कमा सकते हैं, कितने समय तक ये मशीन काम करेगा, जानना जरूरी है कि नहीं? मैंने बोला 50 मिनट। तो भले ही पैसे छापने का मशीन है, लेकिन कोई उसका यूज नहीं है, मालूम चल गया? तो भले आपको कोई सोने का पेन बेच रहा हो या पैसा छापने का मशीन बेचे, जानना जरूरी है कितना कमाता है, कितने समय में मेरा पैसा वापस आ सकता है। बात समझ में आ रही? तो इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना इसी को कहते हैं, वही समझते हैं असल लैंग्वेज में। इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 100 रुपए इन्वेस्ट किए कंपनी में, 18% की कमाई हो रही है। बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 18% की कमाई हो रही है। बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करके 18 रुपए मिल रहे हैं, क्या ये बिजनेस अच्छा है? बढ़िया है ना? बढ़िया है। वहां तो 7 रुपए मिल रहे थे, बैंक से बहुत अच्छा कमा रहा है, 18 रुपए मिल रहे हैं, 18 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, और अगर इस बिजनेस में थोड़ा बहुत लोन भी लेके बिजनेस कर रहे हैं, और लोन मान लो 6% का, 7% का ब्याज से, 9% के ब्याज से लिया है, 6% का मान लो इक्विटी शेयर देके पैसा उठाया मार्केट से, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उनका मान लेते हैं 14-15% है, तो 14-15% से ज्यादा कंपनी 18% कमा रही है, 18 रुपए 100 रुपए पे कमा रही है, तो बिजनेस अच्छा है या खराब है? मान लो पिछले 10 साल से किस प्रकार से बिजनेस कर रही है, पिछले 10 साल से कंपनी की अर्निंग पावर है, तो मान लेते हैं, मान लो ये कंपनी है, जो कंपनी मान लो किले की तरह है, जिसके बाहर बड़ा सा खंडर है, खंडर में पानी है, पानी में मगरमच्छ छोड़े, जिसमें आसानी से कॉम्पिटिटर्स घुस नहीं पा रहे हैं, तो 18 रुपए कमा रही है। अब ये 18 रुपए कमाने वाली कंपनी का एनालिसिस इंट्रिंसिक वैल्यू किस प्रकार से शुरू किया जाए, कितना सही दाम इसके लिए देना ठीक हो सकता है। अगर 18 रुपए 18 रुपीज 18 रुपए अगर आपको बैंक से चाहिए होते, ध्यान देकर सुनना, 18 रुपए अगर आपको बैंक से चाहिए होते, तो बैंक में आपको कितने पैसे रखने पड़ते? बैंक 6 रुपए दे रहा है 100 रुपए, बैंक में 100 रुपए रखते तो 6 रुपए मिलते, बैंक में 100 रुपए रखते तो 6 रुपए मिलते, तो 18 रुपए मिलने के लिए कितने रुपए आपको बैंक में रखने पड़ेंगे? 300 रखने पड़ेंगे। अगर बैंक में 300 रखते हैं तो 18 रुपए मुझे मिलेंगे, बात समझ में आ रही है? तो ये बिजनेस जो 100 रुपए पे 18 रुपए कमा रहा है, 18 रुपीज का अर्निंग कर रहा है, बैंक में वही 18 रुपए कमाने के लिए अगर मुझे 300 रुपए रखने पड़ते हैं, बैंक में वही 18 रुपए कमाने के लिए मुझे अगर 300 रुपए रखने पड़ते हैं, तो वो बिजनेस मैं अगर आपको 200 रुपए में देने के लिए तैयार हूं, तो क्या आप खरीदना चाहोगे? क्यों? क्योंकि बैंक में वही कमाने के लिए 300 रुपए रखने पड़ते हैं, 200 में मिल रहा है। अभी आपको पता चला इंट्रिंसिक वैल्यू इसको है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 300 रुपए है। बैंक से कंपेयर करते तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? इसके नीचे बोलता है तो बोल, इसको इसके नीचे बोलता है तो बोल। अभी 100 रुपए नीचे है कि नहीं? इसको अगर एनालिस करते हैं तो 300 का भाव है, 200 पे मिल रहा है, 300 का भाव है, 200 पे मिल रहा है, बीच में गैप है, बीच में मैंने जितना एनालिसिस किया है उसके मुताबिक मुझे लगता है 300 ठीक भाव है, उसके भी नीचे मिल रहा है तो ठीक बात है, जितना नीचे मिले उतना मेरे लिए सेफ है, बात सही है?
जितना नीचे मिले उतना सेफ है, जितना डिफरेंस है इसी को तो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसलिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। किसने लिखी है? बेंजामिन ग्राहम। किसके गुरु थे? उन्होंने और एक किताब लिखी सिक्योरिटी एनालिसिस, बहुत बड़ी किताब है। उसको समझने के लिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आसान लैंग्वेज में उन्होंने समझाया। जो लोग आसान लैंग्वेज में जो किताब है वो पढ़ने के लिए लगते हैं तो लगता है ये आसान लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज लोगों को डिफिकल्ट लगती है। लेकिन आजकल मराठी में भी उपलब्ध है, जरूर पढ़िए। तो वहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ में आ गई? तो जो कंपनी 100 रुपए पे 18 रुपए कमा रही थी, वो अगर कंपनी का आपको कोई बेचने आए, शेयर जो है 200 रुपए मिल रहा है, अब लेना चाहोगे? इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गई? यस नो? अच्छा, तो यहाँ पे 200 पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको वो 300 पे मिल रहा है, लेना चाहोगे? 300 पे मिल रहा है तो लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी उसकी वर्थ मालूम होगी। 300 पे लेना चाहेंगे, लेकिन 300 पे लेने जाएंगे तो उतना ही बैंक में रखना पड़ रहा है। यस नो? लेकिन एक ऐसी कंडीशन है, अगर वो वहां पे मुकम्मल हो रही है तो हम 300 पे भी कुछ शेयर को लेंगे। जानना चाहोगे? आगे बढ़े। देखिए, हमने एक बात बताई कि आपको भूल गए। कंपनी की अर्निंग कैसी हो? कंपनी की, सारे हाथ आगे लाइए, सब भूल जा रहे हैं। कंपनी की अर्निंग कैसी हो? अगर 18 रुपए की अर्निंग 8 कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात यह है आगे चल के कितना करने वाला है। अगर 10 साल तक कंपनी ने अर्निंग में सालाना 14% से ग्रोथ की है, 10 साल तक सालाना 14% से अर्निंग में ग्रोथ की है, और बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि आगे चल के भी 20 साल तक वो ग्रोथ कर सकता है, ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो 18 रुपए का जो आज प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो 5 साल में कितना होगा? 36। कैसे निकाल? रूल ऑफ 72 कौन बता सकता है? बढ़िया आंसर दिया है। रूल ऑफ 72 मालूम होना चाहिए। 72 एक फॉर्मूला है जिससे आप पता कर सकते हैं कितने समय में डबल हो सकता है, अगर हमें ब्याज दर का पता हो। 14% से अगर बढ़त हो रही है तो 14 into 5 कितना आंसर आ रहा है? तो 72 के करीब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हमें ढूंढना है 72 के करीब जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मान लो 10% से अर्निंग में ग्रोथ हो रही होती, 10% से अर्निंग में ग्रोथ हो रही होती, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय डैश इक्वल टू 70। तो 7 साल लगेंगे भाई साहब पैसे डबल होने में। बैंक में रखते हैं, बैंक 7% का ब्याज दे रहा है, डबल होने में कितना समय लगेगा? 72 को डिवाइड 10 साल में डबल हो जाएंगे, 10 साल में। इसलिए बैंक से बेहतर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका इस कारण मिल सकता है कि कोई बिजनेस ऐसा होता है जो अपने अर्निंग में अगर 14% से सालाना ग्रोथ कर रहा है तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 5, 70 अगर आ रहा है तो 72 के करीब जा रहा है, 5 साल में प्रॉफिट दुगना कर रहा है। अगर 18 से प्रॉफिट 36 कर रहा है। अभी मेरा अगला सवाल है 5वें साल के बारे में। अगर सोचे जिस समय पे कंपनी 36 रुपीस का अर्निंग कर रही है, 5वें साल में, यहाँ के बाद 5वें साल में 2030 में अगर हम चल जाते हैं, जिस वेरी ईयर 2025 को ईयर 5 साल ऐड कर दिए मैंने, 5 साल 2030 में अगर कंपनी 36 रुपीस कमाने वाली है और 2030 में बैंक की ब्याज दरें मान लो 6% की है, बैंक की ब्याज दरें मान लो 6% की है, तो 36 रुपीस बैंक से आपको मिलने के लिए बैंक में कितने रुपए रखने पड़ेंगे? अगर 5 साल के बाद आपको 100 रुपए पे 6 रुपए बैंक देने वाला है, तो 36 रुपीस बैंक से मिलने के लिए आपको बैंक में कितने रखने पड़ेंगे? 600। अगर 600 रुपए
मैं रखता हूं बैंक में तो 36 मिलेंगे, यस नो? बैंक में 100 रुपए रखता हूं तो 6 रुपए मिलेंगे। जरा बैंक बिल्कुल समझ में नहीं रहे तो जरा मेरे साथ करो। बैंक में ऐसा करो सब लोग, बैंक में 100 रुपए रखते हैं तो 6 मिलने वाले हैं। 600 रखते हैं तो 36 रुपीज मिलेंगे। तो 36 रुपीज का अगर अर्निंग होने वाला है तो कंपनी की जो प्राइस है 600 होनी चाहिए। तो भले आज 300 पे ले रहे हैं आप, लेकिन भविष्य में अगर अर्निंग बढ़ने वाली है तो उसका 600 का दाम आ सकता है। yes. तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कंपनी है 100 रुपए पे 18 कमा रही है, 300 पे देने के लिए तैयार है। आप बोल रहे थे नहीं बैंक जैसी लग रही है, नहीं बैंक जैसी लग रही है, लेकिन अभी बैंक से बेहतर लग रही है। क्या एक बात भूल गए थे, अर्निंग कैसा होना चाहिए? तो अर्निंग बढ़ता रहा तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती रहेगी। मेरे साथ बोलो, अर्निंग बढ़ता रहा तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती रहेगी। बात समझ में आ रही है? अभी परफेक्ट स्टॉक के बारे में मैंने आपको वॉरेन बफेट इस आदमी का जो प्रिंसिपल है वो बताया। अगर आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो मैंने कुछ किताब के बारे में बताया। कौन सी किताब का नाम बताया? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बताया। यस तो वो किताब जरूर पढ़ लेना। अभी ग्रोथ, जो कंपनी की आने वाली ग्रोथ होती है उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। एक आदमी है जिसका नाम थोड़ी समय पहले मैंने लिया था, नाम है पीटर लिंच। नाम है पीटर लिंच। 11 साल तक मजेरियन फंड में फंड मैनेजर जिस आदमी ने रहते हुए सालाना 29% रिटर्न। ये रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है। 11 साल। उस आदमी ने 3 किताबें लिखी हैं, तीनों किताब पढ़ो। मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो बस कैम का सीरीज देखने नहीं बनता, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो 3 किताबें हैं अच्छे से पढ़ लेते हो, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टर बन जाओ। उसमें से बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत पसंद आएगी, जानना चाहोगे? उसमें से चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बताए, सारे सीक्रेट्स मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसमें से एक सीक्रेट आपको बताऊंगा ताकि आपकी पढ़ने में रुचि बनी रहे। कैसा हो परफेक्ट स्टॉक? उन्होंने ऐसा बताया है, ऐसा बिजनेस ढूंढो बिल्कुल डल सा बिजनेस, डल सा नाम। सुनने के बाद ऐसा लगे क्या है, सुनने के बाद ही कैसा लगे है क्या ये? अभी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। 2 कंपनियां, एक कंपनी का नाम है अरुण लिमिटेड। क्या नाम है? अरुण लिमिटेड। और दूसरे कंपनी का नाम है HTC इंटरनेशनल। नाम से अभी शेक्सपियर ने क्या कहा है? नाम में क्या है? शेक्सपियर क्या है? नाम में क्या है? लेकिन नाम में बहुत कुछ हो सकता है, नाम से हमें पता चल सकता है, कुछ ना कुछ पता चल सकता है। अभी अरुण लिमिटेड करके कंपनी है, अरुण लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है HTC इंटरनेशनल। नाम से ही पता चल रहा है कौन सी कंपनी बड़े पैमाने पे काम कर रही हो। तो HTC इंटरनेशनल पे फोकस करोगे कि नहीं करोगे? और अरुण लिमिटेड, अरे वहां पे ही पैसे छुपे हो सकते हैं। पीटर लिंच का कहना क्या है? आप तो इंटरनेशनल के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पे अरुण के पास पैसे हो सकते हैं। देखो वहां पे जाके, अरुण नाम है इसलिए कोई जा नहीं रहा है वहां पे। बात समझ में आ रही? तो 5 साल में कंपनी का शेयर है, बाद में देखूंगा स्लाइड। 5 साल पहले कंपनी का शेयर था 92 रुपीज था। आज के 5 साल में के बाद देखते हैं कंपनी का दाम, जो शेयर का दाम है 600 रुपए। 92 रुपीज से 600 रुपए। कंपनी का नाम जानना चाहोगे? वरुण। जब इस कंपनी के बारे में हम लिखने की कोशिश लिख रहे थे, ठीक है, कंपनी वरुण, कोई अच्छी सी कोई इंटरनेशनल कंपनी हो, लेकिन वरुण लिमिटेड जब अंदर जाके जांच किया कि कंपनी करती क्या है, तो वरुण लिमिटेड, वरुण ब्रेवरेज, बताएगा कोई क्या?
Fantastic clap. Only this is the only bottle of Pepsi in India. Pepsi कंपनी के बॉटल्स यही बना, बाकी कोई नहीं बना। तो समझ में आ गया ये कंपनी धीमे धीमे करके प्रोग्रेस करके रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़े में प्रोग्रेस कर सकती है, अर्निंग में बढ़ोतरी ला सकती है। पेप्सी अपने और प्रोडक्ट्स लाएगा और इसके कारण रिलेशन इनके साथ बन गया ना, इसके साथ रिलेशन बन गया ना। एक बार रिलेशन इंटरनेशनल कंपनी के साथ बना दी और कंपनी ने अच्छा प्रोग्रेस किया तो वो जोड़ी कैसे बन जाती है, जय और वीरू की जोड़ी बन जाती है। तो ऐसी जोड़ी उन्होंने बना दी, अभी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही। कंपनी का नाम है वरुण ब्रेवरेज। तो कंपनी के नाम की तरफ अगर आप देखोगे डल नाम साबित हो सकता है, आपको देख के लग सकता है नाम तो डल है, लेकिन अगर फंडामेंटल एनालिसिस के तहत उसको एनालाइज करते तो हो सकता है वहां पे बड़ी वैल्यू छुपी हो। क्योंकि हम तो जानते हैं डायलॉग बड़ा फेमस है क्या, नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं पूरी देखी नहीं है, वाइल्ड फायर। तो वरुण ब्रेवरेज के बारे में बताया अभी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, चोलामंडलम शेयर का दाम देखोगे तो 10 साल में 92 रुपीज का 1348 हो गया। एक कंपनी मुथूट फाइनेंस, जॉर्ज मुथूट की है, गोल्ड पे लोन देती है। अभी तो बहुत सारे लोगों को मालूम हो गई 193 से 2000 प्लस चला गया। मैं कोई यहाँ पे डायरेक्ट बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, नहीं तो लिख के उसमें इन्वेस्टमेंट करने की नहीं बात, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एनालिसिस करें तो इस प्रकार से करें, इस प्रकार से। अभी कौन सी कंपनी की तरफ आप एज एन एजुकेशन पर्पस बताना चाहूंगा, देखना चाहेंगे। ये तो हिस्ट्री हो गई ना, हिस्ट्री, फ्यूचर इज हिस्ट्री। तो फ्यूचर में ऐसा कहां पे मौका है कि अगर जानना चाहते हो, अगली साइड देखो। तो यहाँ पे पीएन गाडगिल, पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल, हम तो समझ सकते हैं पुणे में रहते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, इनके शेयर्स भी हैं मार्केट में, गोल्ड के कारोबार में है, तो इनके शेयर्स के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगला नाम है वेदांत फैशन, वेदांत नाम है, इग्नोर कर सकते हैं लोग, लेकिन इनका ब्रांड एक ब्रांड है। कोई बताना चाहेगा कौन सा ब्रांड? वेदांत फैशन। अरे भाई साहब तैयार हो के आइए, ऐसा मैंने ये कहा, मार्क ने हुआ तैयार होके आइए, दुकानों में जाइए, कभी डिस्काउंट नहीं देते। वेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अभी तो प्री वेडिंग शूट बहुत कुछ चलता है, तो यहाँ पे डिमांड बहुत है। ये वेदांत फैशन, वॉरेन बफेट ने कहा मैनेजमेंट की क्वालिटी देखो। जब हमने रिसर्च किया वेदांत फैशन मैनेजमेंट की डायरेक्टर बोर्ड पे कौन लोग बैठे हैं, तो समझ में आया एक आदमी वहां पे बैठा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मार्केट का। वो उस आदमी का नाम कोई जानना चाहिए बता सकता है? वेदांत फैशंस के डायरेक्टर बोर्ड में कौन बैठा है? लोग तो बोले हमें वेदांत ही नहीं मालूम, वेदांत ही बैठा होगा। वहां पे जो बैठा है उनका नाम है मनीष चौकसी, मनीष चौकसी जो एशियन पेंट्स के डायरेक्टर। तो फंडामेंटल एनालिसिस के तहत आप जब एनालिसिस करते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस के तहत विश्व से इश्क लड़ाते हैं, तो ही आपको ये समझ में आता है। लालपत लैब डॉक्टर लाल इन्होंने शुरू की है, जो खून की जांच करते हैं, अच्छी तरीके से बढ़ रही है। मैं कोई बाय सेल का डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक मैं आपको बस एनालिसिस के तहत सिखा रहा हूं, वरना कहोगे मैंने कहा। तो ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन हर किस कंपनी का नाम आदमी के नाम से ब्लाइंडली मत खरीद लेना, नहीं तो फायर लेके समझ के खरीदोगे वाइल्ड फ्लावर हो जाएगा। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, अर्निंग बढ़ता है कि नहीं, बिजनेस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कंपनी मानो कैसी हो, एक बार और, कंपनी ऐसी हो मानो एक बड़ा सा किला हो, किले के बाहर बड़ा सा खंदक हो, खंदक में पानी हो, पानी में मगरमच्छ छोड़े हो, कॉम्पिटिटर्स आसानी से
15% से ज्यादा लगातार हो तो ही उसमें रुचि लेना, वरना वही विड्रॉल निकला। अभी यहाँ पे आंकड़े कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आंकड़े कहाँ पे आपको एनालिसिस कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो moneycontrol.com जैसी वेबसाइट है, moneycontrol.com। ये कहाँ पे देखें, moneycontrol.com पे देख सकते हैं, स्क्रीनर पे देख सकते हैं, स्क्रीनर moneycontrol.com पे देख सकते हैं, स्क्रीनर पे देख सकते हैं। कंपनी का आरओसी क्या है, कंपनी की अर्निंग्स रेट क्या है, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिखाई है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर कुछ आंकड़े दिखाए हैं। पूरा एनालिसिस वहां पे आपको मिलता है, मनी कंट्रोल स्क्रीनर। और एक इंपॉर्टेंट बात सीखने के लिए मैंने स्लाइड यहाँ पे रखी है। मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में लोग एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कंपनी अच्छी या बुरी है। कैसे एनालिसिस करते हैं, वो प्राइस देखते हैं, शेयर की प्राइस में। अगर इन्वेस्ट करने के बाद, अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए, और प्राइस ग्रोथ देखते हैं। प्राइस क्या देखते हैं, ऐसा होता है कि बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में एफडी की रोज जाती है, बैंक में कितनी बैंक में जाने की, बैंक में तो एफडी करने के बाद आदमी रोज जाता नहीं, लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट में तो रोज देखता है। मेरे साथ बोलो, मार्केट में मेरे साथ बोलो, रोज आएंगे, रोज आएंगे। तो मेरे साथ करना है, रोज आएंगे, रोज आएंगे, रोते हुए जाएंगे, रोते हुए जाएंगे। कम आएंगे, कम आएंगे, तो कमाते हुए जाएंगे, कमाते हुए जाएंगे। अगर कोई, देखिए यंग जनरेशन है, आपको जनरेशन सी भी बुलाते हैं, जेड भी बुलाते हैं, लेकिन बहुत आपके पास नॉलेज के सोर्स हैं जिससे आप नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे रोज मार्केट में रोज नहीं आना, मार्केट में रोज ट्रेडिंग करने के लिए आना। इंट्राडे ट्रेडिंग इंजूरियस टू हेल्थ एंड वेल्थ। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहोगे तो ना तो आपको कोई फ्यूचर रहेगा, ना तो आपके सामने कोई ऑप्शन रहने वाला है। तो इस झांसे में बिल्कुल नेट पे कहीं पे भी आपको अगर इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट दिखती है तो उनके वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो सीए ने सर्टिफाइड किया है अवेलेबल नहीं। मार्केट में समय देंगे, मेरे साथ घड़ी पहनिए सबने, अच्छा मोबाइल में होती है तो बहुत से लोग खरीदते नहीं, लेकिन पहले तो मेरे साथ करो। मार्केट में समय देंगे, मार्केट में समय देंगे तो मार्केट पैसा देगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा सोचना है, अगर ये मार्केट आने वाले 5 से 10 साल तक बंद हो जाए। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं जब इन्वेस्ट करता हूं तो ऐसा सोचता हूं आने वाले 5 से 10 साल तक अगर मार्केट बंद हो जाए तो क्या करें। अब कैसे पता करेंगे कंपनी अच्छी बुरी है, प्राइस तो दिखाई नहीं दे रही। मैं लोगों को पूछता हूं किस पे इन्वेस्ट किया है, हाँ अभी किया है, कोई बोल रहा था एशियन पेंट में करे इन्वेस्ट, कैसी इन्वेस्टमेंट है, नहीं अच्छी नहीं, क्यों, शेयर नहीं जा ही नहीं रहा। ये भाई साहब क्या देख रहे हैं, शेयर की प्राइस देख रहे हैं। देखना क्या होगा, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी के प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी आती है तो आज या कल कंपनी के प्राइस में बढ़ोतरी आना स्वाभाविक होता है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि if a business does well, stock eventually follows। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 2013 में आपको स्लाइड दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2013 में कंपनी का प्रॉफिट था 444 करोड़, दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे 2013 में कंपनी का प्रॉफिट था 424 करोड़, 424 करोड़। अभी 2024 में 1747 करोड़। प्रॉफिट में बढ़ोतरी आएगी नहीं? तो कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही? अभी यहाँ पे देखो, कंपनी के सेल्स में 10 साल में सालाना 10% की ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट में 15% की ग्रोथ हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल 10 साल में पिछले 24% से कंपनी पैसा कमा रही है। हम तो सोच रहे थे 14% से कंपनी ज्यादा पैसे कमा रही है। कंपनी सालाना कितना कमा रही है? 20% से ज्यादा कमा रही है। कंपनी के प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो रही है, और ये वही कंपनी जिसने लॉकडाउन में अलीडाइट को खरीद लिया, कंपनी का नाम है पीडीलाइट। इसको बोलते हैं वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग मशीन। कंपाउंडिंग मशीन, पैसा कमाओ बिजनेस में डालो और बिजनेस को बढ़ाओ, पैसा कमाओ बिजनेस में डालो और बिजनेस को बढ़ाओ।
40-50% का डिविडेंड देती है, बाकी अगर पैसा बिजनेस में डालती है, बिजनेस को ग्रो कर रही है, तो इस प्रकार के जो कंपाउंडिंग मशीन्स होते हैं अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ऐसे 10-15 कंपनी के शेयर्स में अगर आप स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। इसको एनालाइज करते हैं। तो अगर आपके पास पॉकेट मनी आ रहा है, अगर बहुत कम पैसा आ रहा है पॉकेट मनी के माध्यम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का छोटा पैसा कल बड़ा हो सकता है। यस नो? तो आप पहले अगर बहुत छोटा पैसा आ रहा है तो इंडेक्स फंड के साथ मार्केट में चल सकते हैं। बाकी कोई म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज्यादा मत सोचो। निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 दो फंड्स है, इंपॉर्टेंट फंड्स है। एक वीडियो मैंने उसके लिए बनाई है। एक बार एक व्यूअर ने पूछा सर 3 फंड बताओ। कितने फंड बताओ? 3। मेरे पास अगर 3000 रुपए तो क्या करें? मेरे पास अगर 3000 रुपए तो क्या करे? तो मैंने उसका जवाब दे दिया। पहले 1000 किसमें डालना है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी 50। दूसरा 1000 रुपए किसमें डालना है? निफ्टी नेक्स्ट 50। भारत के टॉप के 100 कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 1000 रुपए निफ्टी 50 में डालना है, अगले 1000 रुपए निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालना है, और जो बचे हुए 1000 रुपए उसके 2 टुकड़े करना है, उसके पहले जो फंड होता है उसमें डालना है। बात समझ में आई? तो 2 फंड्स काफी है, निफ्टी 50 एंड निफ्टी इंडेक्स फंड सस्ते होते हैं। मैनेजमेंट के लिए 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो चार्जेस लेते हैं 5 या 10 पैसे, 15 पैसे। तो इन फंड्स के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से रिस्क को एनालाइज करते हुए स्टेप बाय स्टेप हर महीने इन्वेस्ट करोगे तो टाइमिंग की चिंता नहीं रहेगी, मार्केट ऊपर गया नीचे गया। और जब आपके पास पर्याप्त पैसे हो जाए तब तक एनालिसिस सीखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो। पर्याप्त पैसे होने के बाद खुद भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सोच विचार कर सकते हैं। जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब जिन्होंने हैंड रेज किए थे, अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो चेक करो क्या वो बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है, क्या उसके प्रॉफिट में ग्रोथ है कि नहीं। बस किसी यूट्यूब पे चैनल पे देख लिया और धड़ाम से उसमें इन्वेस्ट कर दिया, कल का फटाका स्टॉक, ये बनेगा धमाका, ऐसे चैनल्स पे मत जाओ। अगर वो पैसा कमा रहे तो किसलिए वहां पे बता रहा है? एनालिसिस करो, एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? तो कंक्लूजन ये है, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस के बगैर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद बिल्कुल साबित नहीं होगा। Follow structured approach to value companies. Remember Warren Buffett words: stock market is designed to transfer money from the active to patient. जो मार्केट में संयम रख के इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके पास पैसे ट्रांसफर होते हैं। जो हड़बड़ी में जल्दबाजी में पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं उनसे पैसे मार्केट में जो सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से इन्वेस्ट करते हैं उनके पास शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए मार्केट में इन्वेस्ट करते समय अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे। तो पेशेंस रखते हुए इन्वेस्ट करना जरूरी है। बात समझ में? तो इस प्रकार से एनालिसिस करते हुए आप इन्वेस्ट करोगे तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। इस तरीके से आज के सेशन में जो मैसेज मैं आपके यहाँ पे जो सेशन रखा है देना चाहता था, आपके डीएनए में डालना चाहता था और डालने की मैंने कोशिश जरूर की है। अब सेशन चालू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, ताकि आपके जितने क्वेश्चन है उसके आंसर जितना हो सके मैं दे पाऊँ। वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। कोई सवाल ही नहीं? अच्छा सवाल है। Varun Beverages is earning more than the parent company Pepsi. Varun Beverages earning more than Pepsi. Pepsi. Why? Why? नहीं ऐसा नहीं है सर। पेप्सी कंपनी बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है। वरुण बेवरेज पेप्सी से बहुत ज्यादा अर्निंग करती है ऐसा नहीं है। पेप्सी की बॉटलर है और पेप्सी ने जो प्रोडक्ट लाए और उन प्रोडक्ट को भी वो पैकेजिंग का काम कर रही है। अभी और एक डील है पेपर में किसने पढ़ी? कोका का बॉटलर, कोका कोला का बॉटलर। यस ट्रू, जुबिलेंट। अभी जैसी बॉटलर वरुण बेवरेज काम कर रही है वैसे आज ही पेपर में न्यूज है कोका कोला का जो बॉटलर बनने वाला है वो जुबिलेंट कंपनी, जुबिलेंट ग्रुप है वो बनने वाला है। वो जुबिलेंट की और एक कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, दो तीन है लेकिन एक कंपनी आपको इंटरेस्टिंग हो सकती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स क्या बनाती है? डोमिनोज पिज्जा। तो एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कंपनी की अर्निंग बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, आरओई कितना है, मैनेजमेंट कैसी है, कितने समय तक बिजनेस कर पाएगी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंडेक्स फंड में। इसके लिए आप जो जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ऐसे आप अगर आप इन्वेस्ट डाउनलोड करते हैं तो जीरोधा का कॉइन करके है, ग्रो भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं, 500 रुपए से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार उसमें आपने इन्वेस्ट किया और उसको मैंडेट दे दिया तो हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट होते रहेगी। ग्रो ऐप डाउनलोड करो, जीरोधा का कॉइन डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये जनरेशन टेक्निकली बहुत साउंड है, आसानी से आप समझ जाओगे। उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया, वो भी देख सकते हैं। यस, लर्न टू अर्न वन, पीटर लिंच के बुक्स काफी अच्छा सवाल है। लर्न टू अर्न, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट एंड बीट द स्ट्रीट। वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, बीट द स्ट्रीट, लर्न टू अर्न, पीटर लिंच। तीनों किताबें फैंटास्टिक किताब, बहुत सारी किताबें हैं लेकिन तीन जरूर पढ़ो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, 100 बैगर करके किताब है वो भी पढ़ो। ऐसे कंपनी के बारे में लिखा है जिन्होंने 100 गुना रिटर्न दिए। बहुत अच्छा सवाल है। वॉरेन बफेट ने एप्पल के शेयर क्यों बेचे? इसका आंसर वॉरेन बफेट ही दे सकते हैं। अब ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में। देखिए वॉरेन बफेट ऐसे हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद अच्छे रिटर्न मिल रहा है और उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह पे अगर नजर आ रही है उससे भी बेहतर, तो वहां पे स्टेक बेच के दूसरी कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट कर लेते। तो हो सकता है उन्होंने दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी को पहचान के वहां पे स्टेक सेल किया। इसके बारे में तो उनके लेटर जब आगे चल के आएंगे तो समझ में आएगा। अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है कि एप्पल, वैसे देखिए एप्पल की कंपनी में टेक्नोलॉजी में वॉरेन बफेट इतने खूबी, इतने इंटरेस्ट से आज तक इन्वेस्ट नहीं उन्होंने किया। वॉरेन बफेट बहुत समय के बाद एप्पल के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, तो उनको अगर लग रहा है कि वैल्यूएशन के मुताबिक यहाँ पे निकल जाना चाहिए और किसी दूसरे जगह पे इन्वेस्ट करना है, बीच में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि लिपस्टिक बनाने वाली कंपनी में भी। अब उसके ऊपर एनालिसिस क्या था? उसके ऊपर एनालिसिस क्या था कि जब भी मार्केट में डाउनफॉल होता है, कभी भी लिपस्टिक की कंपनियों में उतना डाउनफॉल आता नहीं। तो क्या इसका मतलब है आने वाले समय में मार्केट गिरने वाला है? तो एक ऐसा हो सकता है कि उन्होंने, उनको वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आया हो इसलिए बेचा। जैसे अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहा हूं तो मैंने क्या देखना चाहिए जिससे ऐसा लग सकता है कि ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस फेलियर है। हाउ व्हाट टू चेक फॉर दिस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अकाउंटिंग फ्रॉड्स कैसे डिटेक्ट करें? इसको बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इसको बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कुछ दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर मान लो सेल्स में बढ़ोतरी आ रही है, एनरॉन का कुछ बताया ना मैंने केस की, एनरॉन सेल्स में बढ़ोतरी आ रही है। अभी कंपनी है, कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी आ रही है और कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी आते समय डेटर डेट जानते हो? कॉमर्स स्टूडेंट्स क्या क्या सीखने वाले देख मगर सर छड़ी लेके आओ। देखिए मैं कंपनी में अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जा रहा हूं, ये रहे मेरे 50 मोबाइल बेच भाई, ये मेरे 50 मोबाइल बेच। अभी बेचने में समय लगेगा, यस नो? वो सब बेचेगा, उसके बाद प्रॉफिट मेरे अकाउंट्स में डालेगा, तो उसको क्रेडिट पे दे रहा हूं ना माल में। अभी मेरे पे टारगेट आ गया, 50 बेचे थे, अभी 80 का टारगेट है, तो 80 मोबाइल में लेके गया। वो बोल रहा है पहले की पड़े हुए हैं, ले तू अरे पहले की पड़े हैं। मैं उसको क्या बोल रहा हूं, ले तू, जब बेचे जाए तब देखे जाए। लेकिन मैं बुक्स में डाल देता हूं 80 बेच दी और क्रेडिट लाइन बढ़ा दी। उसको जो पैसे वापस देने के लिए ये वो बढ़ा दिए। जब हम ये चेक करते हैं तब हमें समझ में आता है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप, एक कंपनी है लक्स इंडस्ट्री, दूसरी कंपनी है रूपा, बनियान कपड़े वगैरह बेचती है, तो ये जब देती है इनके डेटर डेट चेक करो, माल कितने समय का डेज लेके बेच रही है, 100 से ज्यादा है, 100 से। और तीसरी कंपनी है पेज इंडस्ट्री, कितने समय में माल रिकवर कर रही है, 11 दिन। 11 दिन में पैसा
आ जाता है। तो पेट इंडस्ट्री, नाम तो पेट इंडस्ट्री है, लेकिन ब्रांड क्या है? जॉकी। तो यहाँ पे ब्रांड की पावर समझ में आती है। ये 100 दिन के क्रेडिट लेके बेच रहे हैं, ये 11 दिन के क्रेडिट पे बेच रहे हैं। एक एनालिसिस, एक एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ मैं, मेरा ऐसा कहना नहीं कि फ्रॉड है, मैं आपको नजरिया दे रहा हूँ। तो ये ऐसी चीजें होती है, कर्जा कितना लिया है, डेटर डेट्स क्या है, मैनेजमेंट कहे क्या रही है, कर क्या रही है। वैसे और एक रेड फ्लैग होता है, मैनेजमेंट के जो ऊपर वाले लोग होते हैं, अगर बहुत सारे लोग बहुत बार रिजाइन कर रहे हैं, हर साल कोई नया मैनेजमेंट में आ रहा है, नीचे तो पता नहीं चलता, ऊपर मैनेजमेंट को पता चलता है कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या होने वाला है आगे चल के। अगर फास्ट मैनेजमेंट के लोग फास्ट उस कंपनी को छोड़ रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग होता है, उनको कुछ तो मालूम चल रहा है, इसलिए वो छोड़ के दूसरी जगह पे जॉब देख रहे हैं। इसके लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जो किताबें पढ़नी जरूरी है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटकॉइन, ब्रिक्स करेंसी। मार्केट में इतना कुछ है, इससे शॉर्ट टर्म में तो हिकअप्स होते रहेंगे। Donald Trump recently tweeted that those who want to join BRICS currency, they would have to say goodbye to relations with America. हाँ, हो सकता है। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हमें यही देखना होता है, सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा। जो कंपनियां, अभी लोग पूछते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था ब्रिक्स के बारे में था, करेंसी पे क्या क्या इफेक्ट होगा अगर छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग, वो इस माध्यम से जो काम कर रहे हैं इकट्ठा होके, और बहुत सी चीजें, कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो किस प्रकार से सोच विचार करनी चाहिए। अभी मान लो कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बालों में तेल लगाते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, पैराशूट, घर में बॉटल है, कितनी लोगों के पास बॉटल है, कंपनी का नाम क्या है? पैराशूट लोग बोल रहे हैं, अरे नहीं है भाई साहब, कंपनी का नाम पैराशूट नहीं है, कंपनी का नाम क्या है? मैरिको नाम, मैरिको नाम है ना। तो अभी बात जरा समझ लो, कंपनी के बारे में जो डिस्कस कर रहा हूं, बाद में इससे आप क्लियर कर लेना। जो क्वेश्चन है कि बिजनेस कैसा हो, अगर इंडिया में बढ़ने के लिए कितना स्कोप हो सकता है। देखिए, बिजनेस ऐसा हो, बिजनेस कैसा हो जो कंपनी का प्रोडक्ट बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरत बन चुका, अफोर्डेबल हो, अफोर्डेबल। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो इंडिया में बेच रही है, इससे कुछ उसको लेना देना बिक्स पे, बालों में लगाने वाला तेल नीड बन चुका है, कंपनी का ब्रांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पैराशूट, हमें नारियल तेल बोलते तो पैराशूट सामने आता है, यस नो, सस्ता होना चाहिए, 2 रुपए की सैचेट भी आती है, 2 रुपए की सैचेट आती है, और प्रोडक्ट ऐसा हो तेजी में भी लोग इस्तेमाल करें, मंदी में भी करें। बालों में लोग तेजी में भी डालेंगे, मंदी में शायद ज्यादा डालेंगे। खाने का तेल कौन? पैराशूट तो उसकी और एक कहानी है, वो कभी उसको हेयर ऑयल बोलती नहीं है, साउथ में तो लोग वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर पाए, जिसको टेक्नोलॉजिकल इतना बड़ा चेंज आ गया, कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन बालों में अभी भी तेल डाला। तो वॉरेन बफेट ने बहुत कुछ बता दिया, इसलिए किताबें पढ़ो। उसने वो क्या बोला है, वॉरेन बफेट बोलते हैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जैसे च्युइंगम। इतना उन्होंने देखा, दुनिया देखी उन्होंने, 90 साल से ज्यादा उनकी आयु है, वो बोल रहे हैं आज भी 90 साल से देख रहा हूं लोग च्युइंगम इसी प्रकार से खाते हैं। तो कंपनियां ऐसी होती है, आपको ढूंढना ऐसा होता है कि जिन कंपनियों को ऐसे मामले में इफेक्ट ज्यादा है, और इस प्रकार के अगर पिकअप्स आते हैं मार्केट में, शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसा भी होता है, ये गवर्नमेंट आ गई, वो गवर्नमेंट आ गई, लेकिन मैं जो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे पीडीलाइट हो, एशियन पेंट हो, कांग्रेस के टाइम पे भी थी, बीजेपी के टाइम पे भी थी, वो जानते हैं उनको कैसे बिजनेस करना है, आंकड़े देखना है, बिजनेस समझना है, और उसके हिसाब से चलना। बात समझ में आ गई? इंटरनेट ट्रेडिंग अरे नहीं करनी है, कसम खा लो,
इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी, इंड्यूस टू हेल्थ एंड वेल्थ। डे ट्रेडिंग इंड्यूस टू हेल्थ एंड वेल्थ, कसम खा लेना है। मान लो कुछ लोग होते हैं मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, वो बोलते हैं जहां से गया वहीं से लूटूंगा, और जो है वो भी कमा ले। जहां से लूट गया वहीं पे लूटूंगा, वहां है ही नहीं तो क्या ढूंढ रहे हो? नहीं करना। गुड क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसका दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा। इंट्राडे सब खड़े हो जाओ, एक साथ खड़े हो जाओ। हाँ, आगे बोलो मेरे साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग इंड्यूस टू हेल्थ एंड वेल्थ। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, ना तो कोई फ्यूचर रहेगा, ना तो हमारे सामने कोई ऑप्शन रहने वाला। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, Dressing of financial statement. Window dressing of financial statement. हाँ, Satyam Computer. विंडो ड्रेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, Satyam Computer. सत्यम कंप्यूटर। उन्होंने क्वेश्चन किया है सर ने कि विंडो ड्रेसिंग क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वही ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग के मामले में आता है। कंपनी में सत्यम कंप्यूटर एक फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड के बारे में पढ़ लेना। उन्होंने क्या किया था, कंपनी में एम्प्लॉइज की संख्या ज्यादा दिखा दी थी, जो थे कंपनी में एम्प्लॉइज ज्यादा दिखाई थे, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा दिखाई थे, पैसा बढ़ता जा रहा था। अब पैसा इतना हो गया, असल में वो पैसा नहीं। अब वो पैसों का करे क्या? तो वो प्रमोटर ने ऐसा सोचा, मैं ऐसा करूंगा, वो पैसों से एक रियल एस्टेट की कंपनी खरीदता हूं। वो कंपनी मेरी बेटी की है, पता ही नहीं चलेगा, वो पैसा था ही नहीं, मेरी कंपनी बस नाम पे यहाँ पे या वहां पे शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन जो उसमें इन्वेस्टर्स थे वो बोले आपकी तो आईटी कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी कहां पे खरीदने जा रहे हो माइटा से। जब उनको वो खरीदने का मौका नहीं मिला, तब सामने उनको बोलना पड़ा मेरे पास तो पैसे ही। इसीलिए कंपनी का ये पैसा रियल में आ रहा है कि नहीं चेक करने के लिए कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखना पड़ता है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखना पड़ता है, सब जाके मिला के, ऐसा नहीं सब क्रेडिट पे पैसा बोल रहा है, असल में ऐसा हाथ में कितना आ रहा है। तो फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, लगातार उसमें ग्रोथ है तो उसके पास उतना पैसा हो सकता है। तो इसलिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सीखने के लिए, जिसके बारे में बहुत सी किताबें मार्केट में मिली है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग minimum or maximum interest for how many years? how many years मिनिमम और मैक्सिमम? देखिए 5 साल तो मिनिमम लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, 5 साल तो मिनिमम, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। 5 साल में अच्छी कंपनी अगर प्रॉफिट में दुगना ग्रोथ आती है तो आपके पैसे भी अच्छे से बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम जितना मर्जी चाहो। और आपको बहुत यंग जनरेशन हो, तो यंग जनरेशन क्या होता है, बहुत एनर्जी होती है लेकिन करना क्या मालूम नहीं होता, और जब मालूम चल जाता है क्या करना है तो बेनर्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपको मालूम चल गया, यस नो, 20 साल तक 25 साल तक तैयारी करोगे तो जिनको बोलते हैं कि मुझे अर्ली रिटायर होना है, रिटायर तो मत हो जाओ अर्ली, वहां पे जो पैसा है, खुद को जो पैशन है वो काम जरूर करो। अभी देखिए हर एक की कुछ ना कुछ पैशन होती है, यस नो, तो पैशन की तरफ जरूर ध्यान दो, अपनी पैशन की तरफ जरूर ध्यान दो। उससे ही बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये सोचो, उससे ही नौकरी में कैसे यूज किया जाए वो सोचो। नौकरी से जो पैसे कमाओगे मार्केट में इन्वेस्ट करो, दिस विल बी योर साइड इनकम। ये साइड बिजनेस रहता चलता जाएगा। बाद में ऐसा हो जाएगा कि 20-25 साल करोगे तो साइड बिजनेस जो है वो मेन बिजनेस बन जाएगा, और अभी जो कर रहे हो वो साइड में हो जाएगा। लेकिन पहले से ही साइड में नहीं करना है। तो मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम करो। Aside from what you have said in this lecture, what is the one piece of advice you would like to give to someone who is interested in stock market or who wants to get into this? बहुत अच्छा सवाल, शिद्दत से जवाब दीजिए। आपका भी सवाल है। क्रिप्टो में रैट पॉइजन बिल्कुल मत करो, आटा वाटा कुछ नहीं। इसके बारे में वीडियो डालूंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये समझाता हूँ। बिटकॉइन, ये बिटकॉइन क्यों खरीद रहे लोग मालूम है?
उनको लग रहा है जो फियाट करेंसी है, जो अभी करेंसी मार्केट में चल रही है, रुपया डॉलर सब निकल जाएंगे। अगर सब कुछ निकल गया और सब लोग बिटकॉइन में ही ट्रेडिंग करने लगे, बिटकॉइन में ही अगर ट्रांजैक्शन करने लगे, तो जिसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन वो अमीर हो जाएगा। तो ये इस सोच से कर रहे हैं, आगे चल के कोई करेंसी टिकने नहीं वाली जिसके पास ये बिटकॉइन में ही सारा पूरा जग, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया बिटकॉइन में ट्रेड करेगी। तो इसके लिए मैं अभी से इकट्ठा कर लेता हूँ। जिसके पास ज्यादा बिटकॉइन, ऐसा नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। तो इसके लिए मैंने बहुत वॉरेन बफेट से लेके बहुत सारे लोगों को एनालिसिस किया। भले कोई और दूसरा इन्वेस्ट करे, मेरा यहाँ पे निजी सलाह है, रैट पॉइजन मत करो। रैट पॉइजन ये वर्ड भी किसने यूज किया? चार्ली मुंगर। चार्ली मुंगर कौन है? चार्ली मुंगर वॉरेन बफेट के राइट हैंड बोला करते थे। Peter Lynch का भी स्टेटमेंट है कि know what you know Correct. and know why you Correct. own it. फैंटास्टिक। तो पीटर लिंच कहते हैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालो। क्या कर रहे हो, किसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यस नो। तो मालूम होना चाहिए किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर क्या रही है। हां, अभी इनका सवाल बाकी है, तो एंड में बताऊंगा कि वन पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा। ऑलरेडी बता चुका हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। ट्रेडिंग करना है तो 6 महीना 18 महीने के लिए ट्रेडिंग चार्ट देखकर कर सकते हो। वो कल बातें करूंगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का कल सेशन में ही लेने वाला हूं। लेकिन वन पीस ऑफ एडवाइस देना बाकी है। और कोई क्वेश्चन? तो फंडामेंटल्स में और क्या क्या देखते हैं? फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को ठीक से एनालाइज कर सकते हैं। एसेट बैलेंस शीट होती है, उसमें एसेट्स में क्या है, लायबिलिटीज में क्या है, उसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जहां से शुरुआत करते हैं, बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं, वो होगा आपको आरओई, आरओसी, कंपनी पर कर्जा कितना है, कंपनी करती क्या है। इससे शुरुआत करते हुए आप बाकी सारे चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। बैलेंस शीट को पढ़ो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो। ऐसा हो सकता है कंपनी के जो सब्सिडीज है उसकी अर्निंग ज्यादा आ रही हो। ऐसा हो सकता है कभी-कभी कंपनी के अर्निंग में, इनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बता रहा हूं, कंपनी के अर्निंग में बढ़ोतरी आ रही है। हम बोले ना अर्निंग बढ़ती है, तो अर्निंग अच्छी बढ़ रही है, लेकिन वो कह रहा है अर्निंग बढ़ रही है, लेकिन अचानक से समझ में आया वो अर्निंग जो इस साल बढ़ी थी, कंपनी ने क्या किया था, कंपनी का कारोबार है मोबाइल तैयार करना बेचना, मोबाइल तैयार करना बेचना, लेकिन अभी इस साल कंपनी के जो प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, कंपनी ने एक लैंड बेची। अभी लैंड बेचना तो इनका मेन कारोबार है नहीं। तो एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि एक्सेप्शनल आइटम बेच के तो प्रॉफिट नहीं आया। तो प्रॉफिट कहां से आ रहा है? अगेन ये जो सब फॉरेंसिक अकाउंटिंग डिटेल में जाके देख सकते हो, कुछ सकते हो। सर कंट्री रिलेशन डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मार्केट, करते हैं, कंट्री रिलेशन अफेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी कंपनी को बड़े पैमाने पे बिजनेस करना है। देखिए कहानी बताता हूं, सुनना चाहोगे? तो पीटर लिंच की किताब में आपको कहानी मिल जाएगी। पीटर लिंच की किताब में कहानी मिल जाएगी। एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट था, उसने एक जगह पे, मान लेते हैं एक जगह पे उन्होंने स्टोर खोला। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जानते हैं ना, मैगडी जैसा हो, समझ में बात आ रही? तो उन्होंने दुकान निकाला, वो भी जो भी रेस्टोरेंट है वो निकाला, अब अच्छे से चलने लगा, अच्छे से चलने लगा। अब ग्रोथ के लिए उन्होंने हर एक शहर में उनकी ब्रांचेस निकाली, हर एक शहर में उनकी ब्रांचेस निकाली। अब ब्रांचेस से उनकी ग्रोथ हुई कि नहीं? तो कंपनी की में जो इन्वेस्टर्स थे उनको क्वेश्चन आ रहा था ये कंपनी ग्रोथ करेगी कैसे। तो ग्रोथ करने के लिए उन्होंने क्या निकाली? ब्रांचेस, फ्रेंचाइज ब्रांचेस, फ्रेंचाइज की। अब लोगों को लगा अब तो हो गया, सारे शहर में आ गया, अब क्या करेंगे। अब लोगों को लगा अब स्टोरी खत्म, गुड बाय टाटा। सब सारी जगह पे ब्रांचेस हो गए, अब ये कंपनी ग्रोथ उतनी कर नहीं पाएगी। तो कंपनी ने क्या किया? मेनू बढ़ा दिया। मेनू बढ़ा सकते हैं ना, सुबह को ये मिलेगा, दोपहर को ये मिलेगा, और ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा। बात समझ में आई? अब मेनू बढ़ाने के बाद बिजनेस फिर से बढ़ा, मेनू बढ़ाने के बाद बिजनेस फिर से बढ़ा। अब लोगों को लगा बिजनेस गुड बाय टाटा, अब खत्म, मतलब अब इतना ग्रोथ हो गया, बहुत हो गया। अब कंपनी ने क्या किया? पार्टनरशिप किया कोका-कोला के साथ। हमारा एक खरीदते हो, आइटम खरीदते हो तो उसके साथ आपको कोक मिलेगा, सेल्स बढ़ी, सेल्स बढ़ी। अब ये होने के बाद लोगों को लगा खत्म,
तो कंपनी ने क्या कहा, अब हमारे जो स्टोर्स है अब दूसरे देशों में निकालेंगे, कंट्री रिलेशंस, हम अपने स्टोर्स क्या करेंगे, तो कारोबार ग्लोबल कर दिया और तो तरीके होते हैं, अगर अपने कंट्री के साथ रिलेशन रखे हैं तो बढ़ते। अभी रशिया के साथ जब बाकी लोगों का थोड़ा अच्छा चल नहीं रहा था, लेकिन हमें रशिया ने हमें क्रूड ऑयल सस्ते दाम पे दिया कि नहीं, तो कंट्री रिलेशन अफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच और बॉटम टू टॉप, मतलब पहले कंट्री के रिलेशन देखो, कंट्री का ऐसा रिलेशन देखो, उसको एनालिसिस करो, फिर कंट्री के एनालिसिस पे जाओ। तो ये एनालिसिस जितना करोगे उतना अच्छा है, और कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीजें मैंने बताई वो ये करने के बाद ये तो करना जरूरी है, इसके साथ भी जरूर कर सकते हो रिलेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलो सर फॉरेक्स करेंसी इन्वेस्टिंग पे आपके क्या राइट पॉइंट। ये इसलिए कहना चाहूंगा, अगर फॉरेक्स मार्केट के बारे में एक वीडियो जरूर देखिए। हाँ, ये अभी इलीगल है, इंडियन मार्केट में इलीगल है। जो भी ऐड आपको दिखेंगे हाई फॉरेक्स, डीप फॉरेक्स, डीप फॉरेक्स, सब झूठ है। ये जो इनकी मेन कंपनियां हैं आपको अफ्रीका में किसी टापू पे मिलेगी। करेंसी ट्रेडिंग, वही बोल रहा हूं, करेंसी ट्रेडिंग। इंडिया में 4-5 करेंसी में लीगली अपडेट कर सकते हैं एनएससी पे जाके, जो करेंसी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पे उतना कुछ आपको मिलेगा नहीं, करेंसी ट्रेडिंग में जाना ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम करेंसी ट्रेडिंग में है, लेकिन वहां पे जाना नहीं है। सब जाने इसलिए हमें गधे बन के वहां पे जाना नहीं। इन्वेस्टर बनना है तो मार्केट में बनो, क्योंकि हर एक शेयर के पीछे कंपनी। फॉरेक्स के बारे में एक वीडियो है आर्यन मनी यूट्यूब चैनल पे, जरूर देखो। बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में भी एक वीडियो है, जरूर देखो। शायद 7 मिलियन व्यूज उसको आ गए, तो उसमें बहुत सारा कच्चा चिट्ठा खोला है उसका, मैंने देखो। और कोई सवाल? तो पीस ऑफ एडवाइस देना बाकी है, मैंने बोला था नहीं सर आपने बोला था अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है दो शैले ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग मतलब आपका क्या था? वही कल सिखाने वाला। टेक्निकल एनालिसिस का तो कल सेशन होने वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मार्केट में आप 2 शैले कर सकते हैं, कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट ने कहा, मैंने कहा। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आज मैंने सिखाया, ट्रेडिंग करना चाहते हो कल सिखा रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, वैसे आप टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो, जो फंडामेंटली अच्छा है और टेक्निकली सिग्नल दे रहा है। तो उसके लिए कल डिटेल में उसके बारे में बात करूंगा। आपको आंसर्स सारे क्वेश्चंस की करनी है ट्रेडिंग के बारे में। बस इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, गुड बाय। टैक्सेशन के दृष्टिकोण से वैसे भी, और जैसे एक कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, हाँ, अमेरिका में लॉ बना था तो बहुत सारे इन्वेस्टर निकाले वो एक इन्वेस्टर थे उन्होंने एनालिसिस किया था और उसके ज्यादा से प्रोडक्ट अमेरिका में बनते हैं और बाद में जाके उसका वैसे कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं ध्यान दें। प्लीज बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिका में थी, अमेरिका में एक लॉ पास होने वाला था कि आपको टैक्स ज्यादा लगने वाला है, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन जैसे फार्मास्यूटिकल के बारे में बात कर रहे हो, मैं डिटेल में बताता हूं। फार्मास्यूटिकल पे एक लॉ बनने वाला था और फार्मास्यूटिकल पे लॉ टैक्स ज्यादा बढ़ाने वाले थे। फार्मास्यूटिकल जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो टैक्स बढ़ने वाला है, इसके कारण शेयर का दाम नीचे आ गया। लेकिन जो इन्वेस्टर था उसने एनालिसिस कर लिया था ये प्रोडक्ट जो है उसका सेल ज्यादा बाहर की कंट्री में रहता है, तो इसके यहाँ पे जो भी रूल आएगा उससे उतना अफेक्ट होगा नहीं, और उसने इन्वेस्ट करके पैसे बना लिए। बिल्कुल यही आप लर्न एंड अर्न जो पीटर लिंच की किताब है उसमें केस करिए। खड़े होइए, क्लैप। बता रहा हूं इसकी किताबें पढ़ो, ये पहली जो लर्न एंड अर्न इसमें ये केस करिए। जब आप पढ़ते हैं तो समझ में आता है अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। वैसे बीच में अपॉर्चुनिटी बनी थी जब कोविड के टाइम पे एक कंपनी का शेयर नीचे आया था, तो मैंने उसमें कहा था
कि बड़ी मुसीबत में अच्छी कंपनी में बड़ा अच्छा मौका बनता है। एक कंपनी थी जो रेलवे में कैटर करती है, खाना पीना देती है, रेलवे में खाना पीना देती है। कंपनी का अर्निंग 25% से ज्यादा था, शेयर खामा नीचे आ गया था, रेल बंद थी। रेल कोविड में रेल चालू नहीं थी ना, तो हमेशा बंद रहने वाली थी क्या? और सरकारी कंपनी थी, बाद में तो शुरू होगी। और 25% से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमा रही थी। शेयर का दाम बाद में 5 गुना बढ़ गया। कंपनी का नाम था आईआरसीटीसी। अभी के लिए नहीं बता रहा हूं, नहीं तो जाके खरीद लोगे। तो अपॉर्चुनिटी पहचानने का तरीका होता है, यही उन 3 किताबों में बताया है। अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ा है। तो पीस ऑफ एडवाइस पे आता हूं। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना बहुत जरूरी है। लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में समय दोगे। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस कोट के साथ में जोड़ता हूं। मैंने कहा आपको कि आपकी जो पैशन है, आपकी जो पैशन है उसको फॉलो करो। आपकी जो पैशन है उसको फॉलो करो, आपके पैशन को पहचानो। आपकी पैशन को पहचानो, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो खुद को बड़ा कर पाओगे। जो पैसा उससे बनाओगे तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। वो पैशन के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। वो पैशन के लिए पागल होना बहुत जरूरी है। उस पैशन के लिए अगर आप पागल हो जाओगे, उस पैशन के लिए अगर आप पागल हो जाओगे तो पागल कहेंगे लोग। उस पैशन के लिए पागल हो जाओगे तो पागल कहेंगे लोग। जब अपने मंजिल को पार होगे तो पागल हो जाएंगे। तो मार्केट में एनालिसिस का इश्क, रिस्पेक्ट, इश्क है, यस नो? तो इश्क ऐसा दिमाग पे सवाल होना चाहिए, इस इश्क में हम ऐसे डूबे रहते हैं, इस इश्क में हम ऐसे डूबे रहते हैं, कहने वाले कहते हैं लोग डूब के मरते हैं, हम तो डूब के जिया करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं कल टेक्निकल एनालिसिस। आपल्या सर्वांच्या लक्षात राहायचं की भूषण गोडबोले सरांनी किती छानपैकी हे सेशन घेतलेलं आहे. असं फंडामेंटल खूप टेक्निकल अशा स्वरूपाचं आहे, पण अतिशय इंटरेस्टिंगली अनेक गोष्टी आपल्या सर्वांना व्यवस्थित समजून सांगितल्या आहेत. आणि जेव्हा त्यांनी जाहीर केलं की उद्याचं सेशन सुद्धा मीच घेणार आहे, तेव्हा पडणाऱ्या टाळ्या त्या खरोखर म्हणजे आश्चर्य आणि खूप छान अशा होत्या. त्याचा खूप सगळ्यांना आनंद झाला की सर उद्याचं सेशन घेणार आहे. त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा जोरदार आपण मी सरांचा रेग्युलर वाचक आहे. सरांचं सातत्यानं सकाळ आणि लोकसत्तामध्ये पुढारीमध्ये लेख असतात, मी नेहमी वाचत असतो. आज आपण म्हणजे मी सुद्धा अतिशय भाग्यवान आहे की मला सरांना ऐकायला मिळालं. प्रत्यक्ष मी त्यांना ऐकलं नव्हतं आणि आपण सगळे भाग्यवान आहात की आपल्या सर्वांना त्यांना ऐकता आलं. आणि ज्या पद्धतीने बॉडी लँग्वेज आणि सगळ्याच गोष्टी ज्या आहेत, कम्युनिकेशन कशा प्रकारचं असतं हे सुद्धा आपण त्याच्यावरून शिकता येतं. विद्यार्थी कसे असताना अशा प्रकारची व्याख्यानं ऐकायला मिळणं हे खरोखर गरजेचं आहे. हा उपक्रम आपण अनेक वर्ष राबवतोय. आपण वेगळे स्पीकर्स आपण त्याच्यावर बोलत होतो.
आणि त्यातले अनेक विद्यार्थी नंतर घडले आणि स्वतः काही ब्रोकर झाले, काही स्वतःमध्ये त्या शेअर्स इन्व्हेस्टमेंट करायला त्यांनी सुरुवात केली. आणि असाच एक माजी विद्यार्थी आपला क्षितिज जोशी, कर्मधर्म सेवकांनी माझी काल त्याची एका दुकानामध्ये भेट झाली आणि त्याला सांगितले असं शिक्षण चालू आहे, तुझ्या अनुभव सांगण्यासाठी तू एक 5 मिनिट येशील का? तो आलेला आहे. तो मी परवाच्या ह्याच्यात काय करत तुम्हाला सांगितलं होतं मी की माझ्याकडे असे अनेक विद्यार्थी याची केबिन मध्ये आणि त्यांच्याशी तुम्ही बोलत का? त्यांच्याशी चर्चा करायचं आणि मला असं व्हायला लागलं कधी की तेच मला सांगायला लागलं की आपल्या शेअर्सवर गुंतवणूक करावं. तर असा आपला हा विद्यार्थी क्षितिज जोशी, तो आपल्याशी एक 2-4 मिनिट संवाद साधेल. क्षितिज जोशी. आजपासून 4 वर्षाच्या तुमच्या जागेवर आणि जेव्हा हळूहळू कळायला लागलं स्टॉक अनालिसिस, शेअर मार्केट काय असतात आणि सरांनी आज जे सांगितलं ते खूपच म्हणजे एक खूप सिम्प्लिफाय करून सांगितलं. सो मेक शुअर यू यूज इट. आणि इट हॅज ऑलवेज हेल्प्ड मी पण स्वतः हळूहळू अनालिसिस करत गेलो की आपल्या सगळ्यांच्या बद्दल रचना करायचं की सर हे शेअर सांगतात, ते शेअर सांगतात, हे जानकारी करा. आज कुठेतरी हे करता करता कॉलेज पास होऊन 4-5 वर्ष झाली, तेव्हा जॉब इन्व्हेस्ट करून आज कुठेतरी असा प्रोफाईल झाला जिथे मी स्वतःची कार घेऊ शकतो. So you will also be able to do this. You just have to follow what sir said and work on it. The journey has been great. Stocks मध्ये कधीच नेहमीच प्रॉफिट होतं असं होत नाही. तुम्ही जर 10 इन्व्हेस्ट करताय तर प्रॉब्लेम त्यातले 4च चालणार आहेत, पण त्या 6चे लॉसेस भरून काढून तुम्हाला 4चे प्रॉफिट पूर्ण होतात. सो डोंट बी लॉस अवर्स की लॉस झाला म्हणून थांबू नका, घाबरू नका. कंटिन्यू, बिकॉज जसं तुम्ही शिकत जाल तसे प्रॉफिटही वाढत जाते. जसं सर म्हणाले लर्न अँड अर्न, तसंच आहे. सो दॅट हॅज बीन माय जर्नी. थँक्यू. Very good afternoon on behalf of Faculty of Commerce, Modern College of Arts, Science and Commerce, on behalf of all faculty members and all students, I am glad to be standing here to express my vote of thanks. First and foremost, I extend our sincere gratitude to our distinguished guest speaker, Mr. Bhushan Patwardhan sir, for accepting our invitation. Bhushan Godbole sir for accepting our invitation and for being here with us today and sharing his valuable insight and expertise on fundamental principles. Your knowledge and experiences have provided us with knowledge of share market, mutual funds, and strategies for investment in stock exchange. I also thank to Dr. Ashok Kamble sir for making us part of this great workshop. I am also thankful to Dr. Principal of our college, Dr. R.S. Jundarao sir, for supporting and motivating us for organizing this workshop. Finally, I would like to thank all of you present here for sparing your time to be with us today and helping us this event a grand success. Thank you, one and all. I request all the students to remain present on time tomorrow. Sir is also again coming us and delivering the lectures. Thank you, one and all.